السلام علیکم ناظرین، 4TV خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ 4TV کے تمام ناظرین کو ہماری پوری ٹیم کی طرف سے ماہ رمضان المبارک کی پرخلوص مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ تمام کے روزوں اور عبادتوں کو قبول فرمائیں۔ اور اب ڈالتے ہیں نظر سرخیوں پر۔ مسلمانوں سے نفرت مودی کا سیاسی ایجنڈا، سازشوں کو ناکام بنانے مجلس کی جدوجہد، قوم ملت کی فلاح و بہبود اہم مقصد۔ احیاء مجلس کی تقریب، بیرسٹر اویسی، اکبر الدین اویسی کے خطابات، محبان مجلس اور عوام کی کثیر تعداد میں شرکت۔ معدنیات اور کانکنی کی غیر قانونی کھدائی کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، شہر کے اطراف ریتی بلاک قائم کرنے وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔ ریونت ریڈی کی بیگ ڈھونے کی تاریخ ہے، بیگ ڈھونے پر پارٹی امور انچارج کی تنقید، ایک جوک، KTR کی پریس کانفرنس۔ پپالا گڑھا میں عمارت میں لگی آگ، 3 افراد بشمول 2 خواتین اور کم سن بچی جاں بحق۔ اور نارسنگی پولیس اسٹیشن حدود میں لاپرواہ ٹرک ڈرائیور نے بائیک کو دی ٹکر، ایک شخص ہلاک۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام، صرف ایک نہیں 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز، ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ، ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامارن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل، 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت، 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن، بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈز 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔
सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने माह रमज़ान के तक़द्दुस का एहतराम करने और इबादतों का एहतराम करने की तलक़ीन की है। मजलिस के अहिया के 66 साल की तकमील पर दारुस्सलाम में खिताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुल्क के सुलगते हुए मसाइल और ज़ाफ़रानी तंजीमों की साजिशों और मनसूबों से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ को बयान किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि माह रमज़ान इस्लाम के 5 सुतूनों में से एक है। माह रमज़ान में इबादतें करें, रोज़े रखें और ज़कात अदा करें। वक्फ तरमीमी बिल पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों से नफ़रत की बुनियाद पर मोदी हुकूमत वक्फ का कानून ला रही है। मुसलमानों की मसाजिद, दरगाहों और खानकाहों को छीनने के लिए वक्फ कानून लाया जा रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला की तरफ से असम्बली में उर्दू कटमुल्ला जैसे अल्फाज के इस्तेमाल पर भी बैरिस्टर ओवैसी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। सदर मजलिस ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ सदूर अरकान असम्बली कारकुनों की खिदमात को भी खिराज पेश किया। बैरिस्टर ओवैसी ने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने और मजलिस को और मजबूत बनाने की अपील की। मैं अपनी जानिब से आप तमाम को अहियाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 67 साल की तकमील पर मुबारकबाद देता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एक सियासी जमात के लिए ये एक लंबा सफ़र नहीं होता, मगर वतन अज़ीज़ के इन तमाम नामसाइब हालात से जो आप और हम वाकिफ़ हैं, उस नामसाइब हालात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने सियासी सफ़र को कामयाबी से जारी रखा और यकीनन हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिस मकसद के तहत अब्दुल वाहिद ओवैसी फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहिया किया, हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुज़ुर्गों की क़ुरबानियों की वजह से, उनके जमात से अटूट वाबस्तगी की बुनियाद पर हमारे मरहूम माँ और बहनों ने जो घर में बैठकर इस जमात के लिए दुआएं की, जो घर से निकलकर इस जमात के परचम को भी थामा, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उन तमाम मरूमीन की अल्लाह मग़फ़रत फ़रमाए, अल्लाह साराल मिल्लत की ख़बर को कुशादा फ़रमा दे, अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो तमाम मरहूम क़ायदीन जिनकी ईसार और क़ुरबानियों की वजह से आज अल्लाह ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वतन अज़ीज़ में एक मुनफ़रद मुक़ाम अता किया, अल्लाह उन तमाम की मग़फ़रत करे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हमारे बुज़ुर्गों की क़ुरबानियाँ, उनका ईसार हमको ये पुकार कर कह रहा है कि यकीनन मौजूदा दौर के टेक्नोलॉजी के तमाम चीज़ों को हमको इस्तेमाल करना है मजलिस की मजबूती के लिए, मगर एक बात याद रखिए, टेक्नोलॉजी ईसार को रिप्लेस नहीं कर सकती, टेक्नोलॉजी इखलास को रिप्लेस नहीं कर सकती, टेक्नोलॉजी क़ुरबानी को रिप्लेस नहीं कर सकती। तो टेक्नोलॉजी अपनी जगह पर है, मगर एक मजलिसी का जहन ये होना चाहिए कि हम ईसार और क़ुरबानी को सामने रखें, हम मसावात के लिए, भाईचारा के लिए कोशिश करते रहें। ये हमको कामयाब और कामरान करेगा। यकीनन फ़ेसबुक पर बैठकर लिखने से किसी हद तक फ़ायदा भी हो सकता है, सोशल मीडिया यूट्यूब पर वीडियो बनाने से, मगर याद रखिए ये जो 67 साल का सफ़र है वो कमरों में बैठकर हमने हासिल नहीं किया, वो आवाम के दरमियान में रहकर आवाम के जज्बात की तर्जुमानी हमने की, फसादात में हमने अपने सीनों को पेश किया, हमने मासूम लोगों की जानों को बचाया,
چاہے وہ کسی مذہب سے ان کا تعلق ہو. ہم نے اپنی پیٹھ ہمارے دشمنوں کو نہیں دکھائی، بلکہ ہم نے اس جماعت کی سربلندی اور کامیابی کے لیے ہم آگے بڑھتے گئے. ہم نے جھوٹوں کے جھوٹے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ہم اپنے گھر میں نہیں بیٹھ گئے، بلکہ ہم کو یقین تھا کہ اللہ سچ کو غالب کرے گا، اور اللہ نے سچ کو غالب کیا. جنہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا اس جماعت کے تعلق سے کیا، آج وہ گمنامی میں پہنچ چکے ہیں. تو میں اپنے مجلسی رفقا سے ہی اپیل کروں گا کہ ہم کو عوام کے درمیان میں رہنا ہے، ہم کو عوام کا کام کرنا ہے اور بے باکی سے کرنا ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی آپ ان جھوٹے باتوں پر یا پھر ان منافقین کے اس پروپیگنڈے پر توجہ مت لیجئے، بلکہ آپ اپنے سامنے اپنی جماعت کے مقصد کو، اپنی منزل کو سامنے رکھیے کہ اب آئندہ 67 سال کے لیے مجھے اس جماعت کو لے کر آگے بڑھنا ہے. دوسری طرف قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین ہر طرح کے حالات میں اپنے مشن پر قائم رہی. مجلس کے احیا سے لے کر آج تک کی مجلس کی خدمات کا قائد مجلس اکبر اویسی نے تفصیلی حوالہ دیا. مجلس کی تعلیمی، سماجی، مالی اور طبی خدمات کا بھی انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ مخالفین کے پروپیگنڈے پر کہا کہ تمہیں تمہارا کام مبارک، ہمیں ہمارا کام مبارک. حکومت کی اسکیموں، شادی مبارک، آروگیہ شری، مسلم تحفظات کا حوالہ دیتے ہوئے قائد مجلس نے کہا کہ مجلس کی نمائندگیوں پر ان اسکیموں کو روبہ عمل لایا جا رہا ہے. شہر میں فلائی اوورز، انفراسٹرکچر کا جال مجلس کی نمائندگی پر پھیلایا جا رہا ہے. اقلیتی کمیشن مجلس کی نمائندگی پر تشکیل دیا گیا. قائد مجلس نے ماہ رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر عبادتوں کا اہتمام کرنے کی تلقین کی. اس سے پہلے صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے دارالسلام میں پارٹی پرچم لہرایا. مجلس کے ارکان مقررہ، کارپوریٹرز اور محبان مجلس کی کثیر تعداد اس جلسے میں شریک ہوئی. اور مجلس اگر آج اس مقام پہ کھڑی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت کے پاس عزم تھا، حوصلہ تھا، جنون تھا اور اللہ کی ذات پر کامل یقین تھا. اگر مجلس اتحاد المسلمین چاہتی، سالار ملت اگر چاہتے، تو اس وقت ہندوستان کے وزیر اعظم کے کئی نمائندے یہی بات بار بار سالار ملت سے کہتے، مولوی عبدالواحد اویسی سے کہتے. کیا کہتے؟ کہ یہ کاغذ ہے، اس کاغذ پہ دستخط کر دو، ہم تم کو رہا کر دیں گے. اور کاغذ میں کیا تھا؟ کاغذ میں یہی تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین سیاست میں حصہ نہیں لے گی. اللہ فخر ملت مولوی عبدالواحد اویسی کی خبر کو نور سے بھر دے. اللہ سالار ملت کے خبر کو نور سے بھر دے کہ انہوں نے کہا 11.5 مہینے کا 11.5 سال تم مجھے جیل میں رکھو، مگر فخر ملت عبدالواحد اویسی کبھی اس کاغذ پہ دستخط نہیں کرے گا، مسلمانوں کو زندہ لاش نہیں بننے دے گا. ہم دستور ہند کے تابع رہتے ہوئے اپنے حق کی لڑائی لڑیں گے، اپنے حقوق کی جدوجہد کریں گے اور مسلمانوں کی پسماندگی کو دور کریں گے، لیکن ہم کبھی اس کاغذ پہ دستخط نہیں کریں گے. تو لوگوں نے دوسرے دن اخبار کے سرخیوں میں مولوی عبدالواحد اویسی کا مذاق اڑایا. کہا بیٹھنے کو کرسی نہیں، جماعت چلانے کو دفتر نہیں، لیکن یہ بوڑھا اور اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں آواز ہوگی، دواخانے ہوں گے، میڈیکل انجینئرنگ کالج ہوں گے. دن میں خواب دیکھ رہا ہے یہ بوڑھا، کہہ کر اخبار کی سرخیاں لگی تھیں.
खै मार रहे थे लोग, सुर्खियां लिखने वाले, अखबार के मुदीरों, खै मारने वाले लोग, देखो आज हमारे कैसे दवाखाने हैं, कैसा मेडिकल कॉलेज है, कैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है, कैसा हमारा दारुस्सलाम है और कैसे हमारे बैंक है। अरे जो ख्वाब फख्र मिल्लत में देखा था, उस ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने वाले का नाम सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी है। ये काम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन करती गई। अहियाए मजलिस के योम तासीस की तकरीब के बाद मोतमद उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा कादरी की क़यादत में पार्टी वफ़द ने पार्टी के साबिक़ सदूर फ़ख्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी और सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी की मज़ार वाक़े दरगाह हज़रत आगा दाऊद साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह पहुँचकर चादर गुल चढ़ाई। इस मौके पर फातह ख़्वानी की गई। मजलिस के क़ायदीन इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि मादनियात की गैर कानूनी खुदाई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मादनियात व कानूनी के शोबे की कारकर्दगी पर वज़ीर आला ने जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि तमाम सरकारी कामों के लिए TGMDC के जरिए रेती की सरबराही की जाए। उन्होंने कहा कि छोटे मादनियात के ब्लॉक के हर्राज के लिए टेंडर तलब करें। उन्होंने कहा कि रेती के अलावा दीगर मादनियात की गैर कानूनी खुदाई और गैर कानूनी सरबराही के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। वज़ीर आला ने कहा कि इस इक़दाम से हुकूमत की आमदनी में इजाफा किया जा सकता है। ओहदेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता माह में किए गए इक़दामात में से और रेत की गैर कानूनी मुंतकिली से होने वाली आमदनी से वज़ीर आला को वाकिफ करवाया। वज़ीर आला ने कहा कि आबपाशी, इमारत शवारे और दीगर हुकूमत के इदारे में होने वाले कामों के लिए TGMDC के जरिए सरबराह किया जाए। हैदराबाद और इसके अतराफ के इलाकों में रेती का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उनके लिए शहर के तीनों जानिब रेती स्टॉक के ब्लॉक्स जल्द कायम करने की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हिदायत दी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को यंग इंडिया पुलिस स्कूल के ब्रोचर और वेबसाइट की रौनमाई अंजाम दी। कमिश्नर पुलिस CV आनंद के अलावा पुलिस के आला अहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आला ने स्कूल यूनिफॉर्म का भी मुशाहिदा किया। वज़ीर आला ने कहा कि पुलिस स्कूल्स में स्पोर्ट्स पर तवज्जो दी जाए। दाखिलों के लिए शहीद पुलिस मुलाजिमीन के बच्चों को तरजीह दी जाए। कल से इन स्कूल्स में दाखिलों का आगाज़ होगा। वज़ीर आला ने कहा कि सैनिक स्कूल की तर्ज पर इन स्कूल्स को तरक्की दी जाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यामगाह पर मुत्तहदा वरंगल के अरकान पार्लियामेंट, अरकान मुक़न्नन ने मुलाकात की। वरंगल के मामनूर एयरपोर्ट को मरकज़ी हुकूमत की तरफ से हरी झंडी दिखाने पर वज़ीर आला को मुबारकबाद पेश की और उनकी सताइश की। मुलाकात करने वालों में वरंगल के रुकन पार्लियामेंट काविया, महबूबाबाद की रुकन पार्लियामेंट बलराम नायक के अलावा दीगर अरकान असम्बली भी मौजूद थे। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी पर अवाम भरोसा नहीं करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ झूठ बोलने से रियासत में कांग्रेस हुकूमत पर अवाम की मुखालिफत कम नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की तरफ से रियासतों को फंड्स देने के मामले का एक तरीक़ेकार होता है। किशन रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी का कहना है कि वो मरकजी वज़रा को डराया धमकाया है, इस तरह की निचली सतह की गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के प्रोग्रामों को मौसर अंदाज में अमलावरी के लिए कई बार CMO को मकतूब लिखा है। मुल्क में तामीर किए जाने वाले 7 टेक्सटाइल पार्क में एक तेलंगाना को लेकर आया हूं और रियासत को RRR को मंजूरी दिलाई है। अवाम से किए वादे को पूरा करने की जिम्मेदारी कांग्रेस हुकूमत की है। इसको बाजू में रखकर बीजेपी पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं और इनकी कारकर्दगी पर सवाल कर रहे हैं। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी उमूर इंचार्ज का कहना बैग ना उठाएं बहुत बड़ा लतीफ़ा है। पार्टी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का काम ही बैग उठाना है। रेवंत रेड्डी की पूरी तारीख बैग उठाने की है। KTR ने कहा कि KCR ने खर्च करके असासे कायम किए हैं और अवाम में तकसीम किए हैं। एक साल में 1,50,000 करोड़ रुपए का खर्च करके रेवंत रेड्डी ने क्या किया है? तेलंगाना को लूट कर राहुल गांधी के अकाउंट में जमा किया है। KTR ने कहा कि KCR ने दोबारा वज़ीर आला बनने पर तेलंगाना रहेगा और कामयाब होगा। इससे पहले चेवेल्ला असम्बली हल्के के साबिक MP P गोवर्धन रेड्डी अपने हामियों BJP और कांग्रेस के कारकुनों के साथ BRS में शामिल हो गए।
हुकूमत ने माह रमज़ान के दौरान उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल्स और दीगर मीडियम के साथ चलाए जाने वाले मुतवाज़ी उर्दू मीडियम स्कूल्स और डाइट के उर्दू मीडियम सेक्शन के असातिज़ा और तलबा के लिए हाफ डे की इजाज़त दी है। इस सिलसिले में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की जानिब से इन स्कूल्स के औकात में तब्दीली का एलामिया जारी किया गया। इदारे टेमरिस के नायब सदर नशीन और सदर मोहम्मद फ़हीमुद्दीन कुरैशी की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने यह फैसला किया है ताकि माह रमज़ान के दौरान असातिज़ा और तलबा इबादतों पर अपना ज़्यादा वक्त दे सकें। एलामिया के मुताबिक 2 मार्च से 1 अप्रैल के दौरान इन स्कूल्स के औकात सुबह 8 बजे तक दोपहर 1:30 बजे होंगे। इससे कबल हुकूमत ने सरकारी दफातर में काम करने वाले मुस्लिम मुलाजिमीन को शाम 4 बजे घर जाने की इजाजत दी है। तेलंगाना कांग्रेस की तादीबी कमेटी ने पार्टी के रुकन कौंसिल 3 मार मल्लन्ना को मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों की पादाश में मुअत्तल कर दिया है। इस सिलसिले में तादीबी कमेटी के सदर नशीन जी चिना रेड्डी की तरफ से 3 मार मल्लन्ना को एक मकतूब रवाना किया गया, जिसमें बताया गया है कि 5 फरवरी को मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों के सिलसिले में नोटिस दी गई थी। 12 फरवरी तक जवाब देने की दरख्वास्त की गई थी, लेकिन 3 मार मल्लन्ना की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, इसलिए पार्टी ने उन्हें मुअत्तल करने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि रेड्डी तबके को लेकर 3 मार मल्लन्ना की तरफ से रिमार्क किए गए थे। दूसरी तरफ तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने तस्दीक की है कि 3 मार मल्लन्ना को पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया है। 3 मार मल्लन्ना ने तबकाती सर्वे की कॉपियों को नजर आतिश किया था। उनके खिलाफ डिसिप्लिन शिकनी के तहत कार्रवाई की गई है। वजीर जोपली कृष्णा राव ने कहा कि SLBC टनल के राहतकारी काम तेजी से जारी हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लापता होने वाले मजदूरों का पता चंद घंटे में चल जाएगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि टनल में मजदूर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अभी खुदाई का काम जारी है। 5 से 8 मीटर मिट्टी में दबे हुए 4 मजदूर मौजूद हैं। स्कैनिंग में पता चला है मजीद मजदूर टनल बोरिंग मशीन के नीचे मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि राहतकारी के काम 11 शुबों के अमले अंजाम दे रहे हैं। टनल के अंदरूनी हालत इंतहाई खराब है। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम में 200 किलोमीटर सुरंग की खुदाई का दावा BRS के लीडर्स हरीश राव कर रहे हैं, तो SLBC के 20 किलोमीटर टनल की खुदाई न कर सके। 10 साल में इस सुरंग का काम क्या होता तो ये वाकया रोनुमा नहीं होता। श्रीसैलम SLBC टनल में फंसे 8 वर्कर्स के जिंदा रहने की उम्मीदें मौहूम हो गई हैं। हफ्ते को भी बचाव और राहतकारी का काम जारी रहा। 22 फरवरी को टनल मुनहदिम हुआ था। हफ्ते के दिन मुकामी वाक़े के पास एम्बुलेंस गाड़ियों को देखा गया है। NDRF SDRF की टीमें मुसलसिल बचाव और राहतकारी के कामों में हिस्सा ले रही हैं। इस सिलसिले में हफ्ते को रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी और जोपली कृष्णा राव ने SLBC टनल पहुंचकर बचाव और राहतकारी के कामों का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी भी इस मौके पर मौजूद थीं। रियासती वज़रा का वफ्द हेलीकॉप्टर के जरिए मुकामी वाक़या पहुंचा। अभी तक भी वर्कर्स के हशर को लेकर कोई इत्तला नहीं है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हल्के इंतखाब मलकपेट में माह रमज़ान मुबारक के दौरान सफाई, स्ट्रीट लाइट्स, आबरसानी और दीगर कामों का ओहदेदारों के हमराह जायजा लिया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस और दीगर शोबों के ओहदेदार, बरखी कंपनी और दीगर बलदी सहूलतों से वाबस्ता ओहदेदार इस इजलास में शरीक थे। कचरे की निकासी, मसाजिद, ईदगाहों, कब्रस्तान में सफाई, रोशनी के इंतजामात, इसके अलावा मच्छरकश अद्वियात का छिड़काव, फॉगिंग की भी हिदायत दी गई है। इस इजलास में हल्के के तमाम कॉरपोरेटर्स भी शरीक थे। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने अपने हल्के इंतखाब मलकपेट के छावनी डिवीजन के शाह कॉलोनी में आइमाए मसाजिद और मौज़नीन में रमज़ान किट्स तकसीम किए। इन किट्स में खाने पीने की अशिया के अलावा कपड़े, अतर, मिसवाक और माह मुबारक में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें दी गई हैं। इस मौके पर कॉर्पोरेटर अब्दुलसलाम शाहिद, सरगर्म मजलिसी कारकुन और दीगर मुकामी कायदीन मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कायदे मुकर्रर अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने सरकारी महकमे जात के ओहदेदारों के हमराह जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया, जो वट्टेपल्ली नाइस होटल से गुंडल शाह बाबा रोशन कॉलोनी में 900 mm खतर की स्टॉर्म वाटर ड्रेन पाइपलाइन बिछाई जा रही है। दौरे में उनके हमराह महकमे आबरसानी और GHMC के ओहदेदारों के अलावा नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मोतीलाल नायक के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे। हजरत ख्वाजा सैयद सुल्तान अली शाह बुखारी चिश्ती कादरी रहमतुल्लाह अलैह के 103वें उर्स शरीफ की तैयारियों का आगाज हो रहा है। एकम रमज़ान मुबारक, गुस्ल शरीफ व महफिल समा, बाद नमाज तरावी संदल माली बरामद होगा, जबकि 3 रमज़ानुल मुबारक को बाद नमाज तरावी जश्न चिरागा व महफिल समा मुनक्किद होगी। 4 शुंबा 4 रमज़ान मुबारक को सुबह 9 बजे खत्म कुरान मजीद, महफिल समा व मज़ार पर
चादर गुल की पेशकशी होगी। तेलंगाना ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की टीमों ने बेगमपेट और सिद्दीपेट में मुख्तलिफ दवाखानों और मेडिकल स्टोर्स पर धावा करते हुए गैर कानूनी जखीरा किए गए अद्वियात को जब्त किया है। मलकपेट में वाक़ एक दवाखाने से भी 30,000 रुपए की अद्वियात जो बिना लाइसेंस फरोख्त की जा रही थी जब्त की गईं। 28 ब्लड सेंटर्स पर भी दावे किए गए, कई अद्वियात बिना लाइसेंस फरोख्त की जा रही थीं। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि बिना लाइसेंस अद्वियात की फरोख्त पर 5 साल की सजा हो सकती है। अवाम से किसी भी तरह की गैर कानूनी सरगर्मी पर टोल फ्री नंबर 1800-599-6969 पर इतला देने की अपील की गई है। हैदराबाद के मजाफाती इलाके पुपालगोड़ा में एक अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर वाक़े ग्रोसरी शॉप में इलेक्ट्रिक शॉक से आग भड़क उठी। शॉप में लगी आग से करीब ही खड़ी गाड़ियों तक फैल गई और इमारत की पहली मंजिल तक पहुंच गई। इस दौरान पहली मंजिल पर मौजूद एक फ्लैट में मौजूद 2 सिलेंडर्स को आग लग गई और वो भी फट गए। इस वाक़े में 70 साला जमीला खातून, 38 साला शाहना खातून और 7 साला शजरा खातून घर में फंस गई थीं। उन्हें वहां से निकालकर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो जांबर न हो सकीं। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम फौरन मुकामी वाक़या पहुंची और भड़कती हुई आगों को काबू में किया गया। बाज अफराद को महफूज नीचे भी निकाले जाने की इत्तला है। नारसंगी और वेटिंग गोलापल्ली आउटर सर्विस रिंग रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर दे दी। हिट एंड रन के इस मामले में 25 साला नौजवान पी गणेश हलाक हो गया, जबकि उसके साथ मौजूद शख्स जख्मी हुआ है। यानी शाहिदी ने बताया कि लापरवाह ड्राइवर तेज रफ्तारी के साथ ट्रक चला रहा था और इसने बाइक सवार को टक्कर दे दी। सीसीटीवी के जरिए ट्रक की निशानदही की जा रही है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनके टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद।
मुसलमानों से नफरत, मोदी का सियासी एजेंडा, साजिशों को नाकाम बनाने मजलिस की जिद्दोजहद, कौम मिल्लत की फलाह बहबूद अहम मकसद। अहियाए मजलिस की तकरीब, बैरिस्टर अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी के खिताबात, मुहिब्बान मजलिस और अवाम की कसीर तादाद में शिरकत। मादनियात और कानकुनी की गैर कानूनी खुदाई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर के अतराफ रेती ब्लॉक कायम करने वजीर आला की हिदायत। रेवंत रेड्डी की बैग ढोने की तारीख है। बैग ढोने पर पार्टी उमूर इंचार्ज की तनकीद, एक जोक, केटीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुपालागुड़ा में इमारत में लगी आग, 3 अफराद बशमूल 2 खवातीन और कमसिन बच्ची जां बहक। और नारसंगी पुलिस स्टेशन हदूद में लापरवाह ट्रक ड्राइवर ने बाइक को दी टक्कर, एक शख्स हलाक। और नाज़रीन इसी के साथ 4TV खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज।